अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। हैदर, आप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो करें। राइट सर। सर थैंक यू। सर प्रेजेंटेशन विजिबल है सर। नहीं, अभी विजिबल नहीं है। सर आई शेयर्ड माय स्क्रीन। पापा ने मुझे रास्ते में कार आई दी और सर इज इट विजिबल नाउ? नो। जी, अभी विजिबल हो रही है। राइट सर। जी, अभी आप यू कैन ओपन योर वीडियो एज वेल। सर जस्ट अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर my name is Haider Sultan sir. I am pursuing my MS in project management. This is my research topic, role of inclusive leadership on innovative work behavior with mediating role of employees engagement and moderating role of creative self-efficacy. In next 10 minutes, I shall brief you about my research proposal. So, there's some issue. Just a second. हैदर, आप So लेक्चर सारे then, देखे हुए हैं आपने? yes sir. ओके। सर I'm a DL student and सारे lectures मैंने attend किए हैं सर और summaries भी उसकी submit कराई हुई है सर. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, गुड। Sir, so the sequence I intend following is as flashed. Coming over to introductions. The topic explores how inclusive leadership can influence employees' motivation behavior at work with a focus on two specific factors, employee engagement and creative self-efficacy. आवाज Organizations today face the challenges of fostering innovation to remain competitive in a rapidly changing environment. While inclusive leadership has been identified as potential driver of innovative work and behavior, the mechanisms through which it operates are not fully understood, specifically the role of employee engagement as a mediator and creative self-efficacy as a moderator in the relationship require further exploration. The research question that will be addressed through this research are: number one, how does inclusive leadership influence innovative work behavior in organization? Number two, what is the mediating role of employee engagement in relationship between inclusive leadership and innovative work behavior? And lastly, how does creative self-efficacy moderate the relationship between inclusive leadership and innovative work behavior? The objectives of my research proposal are to examine direct impact of inclusive leadership on innovative work behavior, to investigate mediating role of employee engagement in relationship between inclusive leadership and innovative work behavior, and to explore moderating effect of creative self-efficacy on the relationship between inclusive leadership and innovative work behavior. The study will have a ramification for organizational policies and leadership development programs designed to foster an innovative culture. With this, I come over to literature review. Inclusive leadership has been explained by various researchers in existing studies. However, it refers to leaders who are open, accessible, and encourage diverse perspectives. These leaders create an environment where all employees feel valued and included, which can foster creativity and innovation.
Innovative work behavior involves employees generating, promoting, and implementing new ideas that can benefit the organization. This can include anything from improving processes to developing a new product or services. Employee engagement is the level of commitment and involvement an employee has toward their organization. When the employees are engaged, they are more likely to be motivated and proactive, which can lead to increased motivation and innovation. In this context, employee engagement acts as mediator, meaning it explains how or why inclusive leadership. Creative self-efficacy is an individual belief in their ability to produce creative outcomes. This belief can influence how effectively inclusive leadership translates into innovative work behavior. As a moderator, creative self-efficacy affects the strength of direction of this relationship. If we summarize this literature review, in essence, it examines how inclusive leadership can drive innovation in workplace by engaging employees and leveraging their confidence in their creative abilities. It looks at the pathways and the conditions that influence this process. Coming over to gap analysis, gaps related to existing research work are limited research on inclusive leadership and innovation. While there is substantial research on leadership styles and their impact on innovation, the specific role of inclusive leadership in fostering innovative work behavior is less explored. Most studies focus on transformational or transactional leadership, leaving a gap in understanding how inclusive leadership uniquely contributes to innovation. Mediating role of employee engagement. Although employee engagement is widely recognized as a critical factor in organizational performance, its role as a mediator between inclusive leadership and innovative work behavior is not well documented. Existing studies often examine engagement as an outcome rather than a mediating variable, indicating a need for research that explore this intermediary role. Moderating role of creating creative self-efficacy. Creative self-efficacy has been studied in relation to individual creativity and innovation, but its moderating effect on the relationship between inclusive leadership and innovative work behavior remains under-researched. Understanding how employees' confidence in their creative ability influences this dynamic can provide deeper insight into fostering innovation. Contextual and cultural factors. Much of the existing research is conducted in Western context, with limited studies focusing on diverse cultural settings. There is a gap in understanding how inclusive leadership and its impact on innovation might vary across different cultural and organizational contexts. Practical implementation and measurement. There is a need for practical frameworks and tools to measure the effectiveness of inclusive leadership in promoting innovative work behavior. Current literature lacks comprehensive models that organizations can use to implement and assess inclusive leadership practices effectively. The research model for my research proposal is that inclusive leadership positively influences innovative work behaviors. This is hypothesis one. Employees' engagement positively mediates between inclusive leadership and innovative work behavior. This is my hypothesis two. And creative self-efficacy moderates the relationship between employees' engagement and innovative work behavior. The three hypotheses are flashed. Coming over to methodology.
The study employs a quantitative research designed to investigate the role of inclusive leadership on innovative work behavior, with mediating role of employee engagement and the moderating role of creative self-efficacy. The research design focuses on hypothesis testing through empirical data collection and analysis. A cross-sectional approach will be used to collect data at single point in time. The target population for this study comprises all software houses registered with Pakistan Software Housing Association. Pakistan Software Housing Association is a representative body for software development companies across Pakistan, ensuring access to comprehensive database of the population. Convenience sampling techniques will be employed to ensure representation across small, medium, and large software houses. The sample size will be determined on the total number of houses, software houses registered with PASHA, and improvements will be made to account for potential non-responses. The study will rely on primary data collected through a structured questionnaire. The questionnaire is divided into four main subheadings, which includes inclusive leadership scale, innovative work behavior scale, and employee engagement scale, each having 10 questions, and creative self-efficacy have 8 questions. The questionnaires will be distributed through electronic media via email and online survey platforms to ensure accessibility to broad base audience. And follow-ups will be conducted to maximize their responses. Data analysis will be carried out using descriptive statistics to summarize demographic data and other descriptive variables. Correlation analysis will be used to find out relationship between different variables. Regression analysis will be used to test the direct effect of inclusive leadership on innovative work behavior. Mediation analysis will be used to examine the mediating role of employee engagement, and moderation analysis will be used to assess the moderating role of creative self-efficacy in the relationship between inclusive leadership and innovative work behavior. Variables that are part of the study are inclusive leadership is my independent variable, innovative work behavior is dependent variable, mediating variable is employee engagement, and creative self-efficacy is moderating variable. The ethical considerations for my research are: audience will be informed about research and there will be only voluntarily participation. Confidentiality of data will be ensured along with the identities of the participants. Data security will be ensured through encrypted files, and the data will be purely used for research purposes only. And approval will be sought from institution review board before data collection. The reference material that formed the basis of my research work is as flashed. Heather, thank you very much. I think quite comprehensive. अच्छा आपने काम किया हुआ है और आपका बैकग्राउंड क्या है? You're from आप मेडिकल डॉक्टर है? No, sir. I'm from Ahmed Kaur, and I'm in AFIC presently, doing part in administration, sir. ओके ओके, नहीं जबरदस्त जी, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे बैकग्राउंड चीजें कवर की हैं और आई एम श्योर इट मस्ट नॉट बी इजी टू गो बैक एंड डू दीज थिंग्स जो कि शायद आपने अपने अंडर ग्रेड में तो नहीं की होंगी। तो बहुत Sir. अच्छी एफर्ट है और अच्छी इसको इम्प्रूव भी कीजिए इन कंसल्टेशन विद ये डॉक्टर अहमद हैं। ये इज ही पीएचडी डॉक्टर या ये मेडिकल डॉक्टर है? So he's a PhD doctor, and he's Zavis working में in नहीं। Zavis.
जैबिस्ट है। में तो सर। आपका और ये मेरे ख्याल में एक और हमारे थे स्टूडेंट, दोनों ने इनसे इन टच हैं, तो आप इनको कोई पुराने जानते हैं? ही इज नोन टू मी, डॉक्टर अहमद अली कुरैशी इज नोन टू मी। तो ठीक है, वी बोथ वेंट टू हिम कि वो हमें सुपरवाइज भी करें और गाइड भी करें सर। ठीक है, ठीक है। ये वो डॉक्टर अहमद अली सर कुरैशी वो तो नहीं है जो कहीं कंपेयरिंग भी करते हैं, किसी एंकर शंकर के भी हैं कुछ, वो तो नहीं है कहीं है? नो सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है सर। अच्छा अच्छा, चलो इसका ठीक हो आइडिया। गया, ठीक है। नहीं बहरहाल ठीक है जी, एक्सेलेंट वर्क, और इसको फर्दर भी अच्छा कीजिए, और आई एम श्योर आपने सारे लेक्चर्स भी देखे हैं, समरीज भी सबमिट की हुई हैं, तो आपको अच्छा आइडिया होगा। और जो आपका अपना एक्सपर्टीज थी उनमें किसी नई एक चीज़ की एडिशन हुई होगी ड्यूरिंग दिस सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा है। यस सर, यस सर। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। आगे आप थीसिस सर करना चाहेंगे या नॉन थीसिस ऑप्शन पे डिग्री पूरी करेंगे? सर नॉन थीसिस ऑप्शन सर। चले ठीक हो गया, ठीक है अदर, विश यू बेस्ट ऑफ लक, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। वेलकम जी, अल्लाह हाफिज़। चलिए चलें जी, हु एल्स? वकास रजा जी, बिल्कुल आप शेयर कीजिए, आप बीच में यू जस्ट वेंट अवे। सर एक्चुअली खत्म हो गया था तो उस तो कॉन्टेक्स्ट आप में वहीं था। से शुरू करें जहां से आपने शुरू किया था। आई वुड बी इंटरेस्टेड कि आप लिटरेचर रिव्यू में चले जाएं, जहां लिटरेचर रिव्यू वाला पोर्शन था। सर ये फर्स्ट पेपर था जो कि था इफेक्टिव कम्युनिकेशन एस्टिमेट टू एम्प्लॉय द परफॉर्मेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी मेथोडोलॉजी तो थी वो क्वांटिटेटिव अप्रोच थी, काई स्क्वायर और कोरिलेशन के जरिए एनालिसिस किए गए थे दो हाइपोथेसिस। डेटा कलेक्शन इसके अंदर क्वेश्चनायर के जरिए हुआ और रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक हुई। 40 एम्प्लॉय फ्रॉम ईच कंपनी आउट ऑफ 500 एम्प्लॉयज जो हैं इसके अंदर डेटा के अंदर शामिल थे पॉपुलेशन के अंदर। हाइपोथेसिस था कि क्या सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के साथ या इफेक्टिव नहीं है। तो जब तीनों कंपनीज का जब फाइनली निकाला गया तो उसके ऊपर हुआ कि सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप जो था वो इन्वॉल्व था एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। पेपर टू था कम्युनिकेशन एज ए स्ट्रेटेजी इनहेंसिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। क्वालिटेटिव अप्रोच इस पेपर की थी, इसके अंदर सिर्फ मेजर्स जो है वो चेक किए गए थे उस कंपनी के, और उसी के ऊपर फिर रिकमेंड किया गया था कि क्या मेजर्स जो है वो कंटिन्यू रखे जाएं जो इसको रखेंगे। सिस्टमैटिक रिव्यू अप्रोच रखी गई, और एम था रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एंगल ऑफ स्टडी के अंदर टॉप टू डाउन कम्युनिकेशन कैसी है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे डील हो रहा है, जनरेशन गैप्स इन कम्युनिकेशन उस फॉर्म का कैसा है, और एग्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, और फिर अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन। उसको देखते हुए फिर उन्होंने कुछ चीजें रिकमेंड की उस कंपनी के लिए। वो था कि फ्रीक्वेंट जो था स्टाफ के साथ कांटेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी था फॉर मोर एफिशिएंसी, और इसी तरह जो सॉफ्टवेयर यूटिलाइज हो रहे हैं फॉर द कम्युनिकेशन वो उनको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन थी उनकी, इसी तरह एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी इन्वॉल्व था, और स्टाफ को कंप्लीट इन्फॉर्म रखना और राइट पर्सन के साथ स्पीक करना, ये कुछ रिकमेंडेशन थी उस केस स्टडी की सर। फिर सर पेपर थ्री है मेडिएटिंग रोल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। मेथोडोलॉजी इसकी क्वांटिटेटिव अप्रोच थी, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग इसके अंदर जो फॉलो हुई उसमें ये पाकिस्तान की स्टडी थी सर। इसके अंदर 353 स्टार होटल्स का डेटा कलेक्ट किया गया था कि उनका जो अंदर का जो सिस्टम है वो 350 जब होटल को ईमेल की गई उनका रिस्पांस कलेक्ट किया गया, तो उसका मेन पर्पस था वो यही था कि क्या इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बिटवीन दी कॉन्टेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर और ऑर्गेनाइजेशनल बैलेंस स्कोर कार्ड परफॉर्मेंस। तो उसके अंदर जो फाइनली रिकमेंड हुआ, जो फाइनली वो था रिजल्ट था वो था कि मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर डिड नॉट सपोर्ट इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनिक organizational structure is more appropriate for enhancing the balance scored performance। और इसका जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि ये स्टडी जो लिमिटेड थी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तक, इसको मजीद इंडस्ट्री में किसी में अभी तक वो जज नहीं किया गया था। फिर सर पेपर फोर है द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस ऑफ यूनिवर्सिटी। हॉटसन यूनिवर्सिटी का ये सर रिसर्च पेपर था विद मोटिवेशन और इंटरवीइंग वेरिएबल वकास, क्वांटिटेटिव। एक्सीलेंट एक्सीलेंट वर्क, मुझे बिल्कुल आपका काम बहुत अच्छा हुआ है। अभी आप ये ठीक है, एक दफा फ्लैश करते हुए अपनी मेथोडोलॉजी पे आ जाइए।
ये पेपर 5 है सर। एग्जैक्टली ठीक हो गया। एक्सेलेंट जी, गुड गुड वर्क। अब जी सर, आपने गैप भी जो ठीक है, आई अंडरस्टैंड, रिसर्च गैप भी आपने ठीक निकाला होगा। आप आगे आ जाइए प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद ऑब्जेक्टिव्स दिखाते हुए। ठीक है, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट दो कीजिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसके अंदर हुए। ये सर मेथोडोलॉजी है, इसके अंदर मिक्स मेथड की यूटिलाइजेशन है सर। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही अप्रोच फॉलो की जाएंगी। और जो प्राइमरी डेटा है वो सर्वे, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनर के जरिए कलेक्ट हो जाएगा। और सेकेंडरी डेटा जो है वो सर जो ऑलरेडी आर्काइवल रिसर्च जो डेटा बेसिस हैं उनके जरिए कलेक्ट होगा। रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक होगी, और जो टारगेट है वो बेसिकली ऑनलाइन सर्वे है। जितने भी जो लोग हैं वो यूटिलाइज कर रहे हैं कम्युनिकेशन को, जो जितना भी जिद्दत आती जा रही है इस कम्युनिकेशन के अंदर टूल्स को। और इसी तरह जो मल्टी नेशनल कंपनी है जिनके अंदर हायरार्की जो होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है, वो बेसिकली इसका टारगेट ऑडियंस है। और इसके बाद जो डेटा कलेक्ट होगा वो एक्सेल शीट और स्टैटिकल टूल्स के साथ उसको एनालिसिस किया जाएगा। ये सर टाइमलाइन चार्ट है। ठीक है वकास सर, या थैंक यू वेरी मच। आपका माशाल्लाह बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छा काम किया हुआ आपने, और आई मस्ट ये अप्रिशिएट। सर आप सर आपने सारे अपनी लेक्चर समरीज भी जमा कराई हुई हैं, श्योर ये सर लेक्चर सारे देखे कंप्लीट, होंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। सर। और और सीन योर मिड टर्म पेपर एज वेल, इसमें आपके 22 मार्क्स है आउट ऑफ 25। थोड़ी बहुत जगहों पे थी एक चीज, बट ये कि अदरवाइज इट वाज अ गुड पेपर। और आपका सर प्रेजेंटेशन थैंक बहुत अच्छी है। और आई यू आई मस्ट से कि इसको कंटिन्यू करें और थीसिस के साथ हम डिग्री पूरी करें। श्योर ठीक है सर। सर, थैंक यू थैंक यू वेरी सर, मच थैंक विकास, शुक्रिया। यू। ओके जी, वजाहत आपको फिर मुझे मेरे ख्याल में थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। आपसे हाफ एन आवर के बाद आ जाओ आराम से। हाँ, घूम कर आओ। जब तक कि कुछ लोग हैं, लेट मी, तीन तीन चार लोग हैं, ठीक है। जी, अभी आप में जो ऑनलाइन लोग हैं इनमें से हु एल्स वांट्स टू प्रेजेंट? जी, सिद्दीक साहब हैं एक, एक कोई अल्फा के ए के नाम से हैं। सिद्दीक, आप प्रेजेंट करना चाहेंगे? जी जी सर, मैं करूँ। जी काइंडली आप अपनी वीडियो भी ऑन कर लो, अरे और आपके पास एक्सेस है, आप प्रेजेंटेशन शेयर करें। जी सर, एक चले जा। सिद्दीक के अलावा बाकियों के पास भी एक्सेस है जी। whosoever कैन शेयर द प्रेजेंटेशन एंड स्टार्ट, ही कैन स्टार्ट। सर मैं प्रेजेंट कर दूं? जी जी, आप बिल्कुल ओपन है, सर एनीबडी कैन शेयर। सर वहीं मैं मदद करें जी। सर वीडियो भी अपनी ऑन कर लीजिए। जी जी सर। सर एम आई विजिबल सर? जी जी, विजिबल है फहीम। आपने पहले टॉपिक अप्रूवल लिया हुआ है मुझसे, आप मेरे ख्याल में ऑनलाइन तो जी जी सर। नहीं है, बट सर क्लास में सर भी सर एक बिल्कुल। दफ़ा चक्कर लगा होगा आपका, उसके अलावा शायद कम देखा है मैंने आपको। सर बिल्कुल सर, आपसे अप्रूवल भी लिया था सर। ठीक है। आपसे आपके साथ जो सारे रिसर्च पेपर थे सर वो भी शेयर किए थे। उसके बाद सर डॉक्टर इरफान जफ़र साहब हैं सर, उनके साथ सर मैं राब्ते में रहता हूँ सर रिगार्डिंग दिस रिसर्च सर। चलो ठीक हो गया जी फहीम, आप शेयर कीजिए। आपने अपनी समरी जमा अ, की है सारी? जी सर, कंप्लीट सर सबमिटेड है सर। चलें, दैट्स गुड। और लेक्चर सारे देखे हुए हैं सर आपने? जी बिल्कुल सर, यूट्यूब चैनल पे सर वो सब्सक्राइब भी किया हुआ है, उसको फॉलो भी कर रहा हूँ सर डेली चलें बेसिस ठीक पे है, ठीक है या वीकली फहीम, बेसिस, आप जैसे जैसे वीडियो अपलोड होती है। आप शेयर कीजिए सर, सर बात करें। सर 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 स्लाइड विजिबल से होगी? जी सर, आपकी स्लाइड विजिबल है जी, बिल्कुल। जी सर। सर द माय टॉपिक इज द इफेक्ट ऑफ रिमोट वर्क एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सक्सेस ऑफ अ प्रोजेक्ट, एंड सर माय सुपरवाइजर इज प्रोफेसर डॉक्टर इरफान जफर सर।
Sir, the sequence that I shall be following is as flash, sir. Sir, first of all, coming over to introduction, sir. Sir, during COVID-19 pandemic, which triggered drastic changes in business operation, leading towards the widespread adoption of remote work practices. Sir, that was the peak time जब remote work practices fully utilize हुई थी और इस पे लोगों ने रिसर्च किया, क्योंकि सर सब कुछ बिल्कुल रुक सा गया था। तो सारा जो शिफ्ट है सर, बिजनेसेस थे, एजुकेशन थी, या और भी जितने सेक्टर्स थे दुनिया के, वो सब रिमोट वर्क प्रैक्टिसेस और यू कैन से सर वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट हो गए थे सर। सर ये एक टेम्परेरी शिफ्ट है, लेकिन जब कंपनीज ने, एजुकेशन सेक्टर्स ने, सॉफ्टवेयर हाउसेज ने, कंसल्टेंसी जो सर्विसेज हैं, उन्होंने देखा कि इसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी मेंटेन की जा सकती है, जिसमें सर उनको कुछ चीज़ों का फ़ायदा हो रहा था, जैसे सर रिड्यूस कॉस्ट, इन्हेंस एम्प्लॉयमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और इम्प्रूव वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि पेंडेमिक से पहले इस तरह नहीं था। फिर सर इसमें ये हुआ कि जब ये रिमोट वर्क स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे एक्सटेंसिव पूल ऑफ टैलेंट आने लग गया। सब लोग ऑनलाइन अवेलेबल हो गए, डिफरेंट टाइप की जॉब्स जनरेट शुरू हो गई, स्पेशलाइजेशन ज़्यादा बढ़ती गई, और सर रिमोट वर्किंग की वजह से काम और भी अच्छा होता गया और रिफाइन होता गया, और फ्लेक्सिबिलिटी भी आई और उसमें अडेप्टेबिलिटी भी आई एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। फिर सर प्रोजेक्ट की तरफ अप्रोच किया गया। प्रोजेक्ट सर एज जैसे कि नेचर में टेम्परेरी होते हैं और एक लिमिट तक होते हैं और वो एक एंड कर जाते हैं सर। उस चीज़ को देखते हुए और जो ऑलरेडी जो पूल ऑफ टैलेंट अवेलेबल था, तो इन चीज़ों को मर्ज किया गया, जिससे बड़े रैपिड, अच्छे, पॉजिटिव और फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल रिजल्ट आ रहे थे एज एज कम्पेयर टू द जो कि एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के जो मेथडोलॉजी थी या वर्क करने का तरीका था सर। Sir, businesses are now feeling positive towards project and project based. सर सॉरी सर, इससे फिर बिजनेसेस को जब पता चला कि रिमोट वर्क और जो प्रोजेक्ट की जो कॉम्बिनेशन है, उससे उन्हें हमें बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो इसकी वजह से सर जो अभी भी इवन के पेंडेमिक गुजर भी गया है, तो काफ़ी सारा शिफ्ट जो है वो इसकी तरफ हो गया है, जिसपे सर हम फाइवर, अपवर्क वगैरह पे अभी काफ़ी लोग अवेलेबल होते हैं इस चीज़ों के लिए सर। Sir, the last point is in Pakistan, there is still room to study the factors leading to the implementation of remote work and their implications on existing project based companies' success and employees' well being. Sir, literature review की तरफ आऊँगा सर। Sir, my first paper is the study of remote working outcome and its influence on firm performance. सर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। ये एक इंडिया के आईटी सेक्टर में कंडक्ट हुई थी इंडिया में सर, एज इंडिया इज वेरी वेल डेवलप्ड इन आईटी इंडस्ट्री। सर बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन में ये स्टडी हुई थी सर। और सर रेफरेंस इसका एज फ्लैश सर। सर मेथडोलॉजी की बात की जाए इसकी, सर इट वाज अ क्वांटिटेटिव स्टडी। डाटा कलेक्शन टेक्निक की बात की जाए तो सर मैनुअली और ऑनलाइन क्वेश्चनेयर फ्लोट किए गए थे। जो पॉपुलेशन इसमें टारगेट की गई थी सर, वो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, सुपरवाइजर थे, इंजीनियर्स थे सर। और जो सैम्पलिंग टेक्निक इसमें यूज़ हुई थी वो पर्पजिव हुई थी, क्योंकि सर स्पेसिफिकली आईटी के जो लोग थे उन्हीं को टारगेट किया गया था और उसमें उनकी एक्सपर्टीज़ थी, इसलिए सर उनको ये टारगेट किया था। सर डेटा एनालिसिस SPSS के थ्रू हुआ था सर। प्रोज एंड कॉन की तरफ आए तो सर इसके दो प्रोज ये थे कि इसने थ्योरेटिकल और मैनेजेरियल लेवल पे सर कंट्रीब्यूशन की थी। इसमें जो रिमोट वर्क प्रैक्टिसेस थी वो सर उसकी इनसाइट पढ़ने का मौका मिला कि वो क्या थी क्या नहीं थी, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड और आफ्टर कोविड। और इस डेटे से फिर इनको ये पता चला कि अच्छी गाइडलाइंस और जो रिमोट वर्क पॉलिसीज थी उनको मजीद मजीद ये लोग फर्निश कर सके थे सर। थोड़े से अच्छा कॉन्स फहीम, की ऐसा तरफ बात कीजिए, करें। ठीक है, अब आप इसको फ्लैश करते जाएं अपनी सर लिटरेचर रिव्यू सर को, सर और वन बाय सर वन सर दिखाते हुए देन वी कैन मूव ऑन टू योर मेथोडोलॉजी कि आप जी क्या जी सर, क्या करना चाह बिल्कुल रहे सर। हैं। तो गुड वर्क, ठीक है, सर ये बिल्कुल। पहला पेपर अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट जी सर। रिव्यू। सर ये, जी सर, ये ठीक है, सेकंड एक पेपर है ठीक सर, है, ये दो आगे चलें, यूनिवर्सिटियों ने बस ठीक है, मिलके। मैं देख रहा हूँ इसको, सर आप बस इसको आगे चला फ्लैश करते जाए। ठीक है जी, सर ग्रेट, आगे आ जाए। सर नेक्स्ट। सर ठीक है जी, पेपर सर 3। इसमें मैंने एक स्टडी भी इंक्लूड कर दी थी। मैं समझ गया हूँ जी, ठीक हो गया। आप अपने जी ये जी सर। आपने ठीक है बता दिए, अब आप आगे गैप एनालिसिस को फ्लैश कर दीजिए। जी जी सर। ठीक है, गुड वर्क। सर गैप एनालिसिस में अगर ठीक है, बात, सर गैप फ्लैश हो एनालिसिस गया, में बात ठीक है, की। आगे आ सर जाइए, आगे आ जाइए। जहाँ मैं सर क्वेश्चन होगा मैं आपसे खुद पूछूंगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक जी है, सर आ जाए, सर आगे आ जाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स दिखा दीजिए, क्वेश्चंस दिखा दीजिए। सर
मेथोडोलॉजी पे अपने ये आ मेरे जाए। ऑब्जेक्टिव सर। सर अपने सर ये मेथोडोलॉजी मैंने पे आइए। ज़रा वन स्लाइड पे सर। जी, सर अब इसको थोड़ा सा क्वांटिटेटिव आप बता दें। क्वांटिटेटिव होगी। जी सर। सर जो मैंने बेस पेपर पढ़े और बाकी रिसर्च पेपर पढ़े सर, उस पे रिसर्चर्स की हमेशा ये रिकमेंडेशन में मैंने जो चीज़ वो की है, वो एक तो कह रहे थे कि लॉन्गिट्यूड, ताकि इसके और भी अच्छे रिजल्ट हमें आ सकें। एंड सेकंड वाज कि इसको ज़रा क्रॉस कल्चर और डिफरेंट जोग्राफिक बॉडीज़ पे लेके जाएं। हर रीजन की अपनी डायनामिक्स होती है, तो उस पर भी स्टडी करें सर। इंडिया, पोलैंड, अमेरिका, अरब वर्ल्ड, इन पे थोड़ा थोड़ा मैंने सर पढ़ा। और अभी थोड़ा सा जैसे सर आपने पहले भी कहा कि वो एक खिते तक रिसर्च की जाती है, तो विद दैट एट एंड मैं थोड़ा सा पाकिस्तान में इसको वो कर रहा हूँ, जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स जो कि प्रूवन है, स्पेशली प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज, ट्विन सिटीज़ ऑफ इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। और क्वांटिटेटिव स्टडी होगी सर, क्रॉस सेक्शनल होगी, एट वन टाइम होगी सर। सैम्पलिंग डाटा कलेक्शन की बात की जाए, स्ट्रक्चर क्वेश्चनियर विद लिकर्ट स्केल, आई एम इंटेंडिंग टू गो विद दैट। पॉपुलेशन विल बी प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज, इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। सैम्पलिंग टेक्निक विल बी सिंपल रैंडम। सर वो रीज़न ये है कि अभी पाकिस्तान में इस तरह फ्लरिश नहीं है, तो मैं सारे सेक्टर्स को इसमें टारगेट करना चाहता हूँ, वेदर दैट इज़ सॉफ्टवेयर, कंसल्टेंसी, या इसके अलावा और भी कोई हैं, तो उनका एक ओवरऑल व्यू लेना चाहता हूँ। सर इनिशियल सैंपल साइज इज़ 150। और सर कुछ एनालिसिस जो कि ये रन करूँगा, और दैट विल बी द सॉफ्टवेयर सर। दिस इज़ ऑल सर। और सर कुछ रेफरेंसेस आखिर में, वो आखिर में दिए सर। ये मेरी रिसर्च लाइन है सर। जो ग्रीन कलर है वो सर, वो ये शो कर रहा है कि अभी तक दिसंबर तक ये चीज़ें हो गई हैं। और सर जो ग्रे वाली चीज़ें हैं, दैट आई एम प्लानिंग टू कंप्लीट ऑन द ड्यू टाइमलाइन सर। एंड सर फ्यू रेफरेंसेस लास्ट टू स्लाइड्स पे सर। ठीक है फ़हीम, एक्सेलेंट, गुड वर्क। सर सर काफी कॉम्प्रिहेंसिव काम किया हुआ है, अच्छा किया हुआ है। और आई मस्ट टेक सी कि ये एक सर एज किसी को ना आप एज अ सैम्पल प्रेजेंटेशन के तौर पे दिखा भी सकते हैं। तो आप मुझे प्रेजेंटेशन अपनी जी सर। शेयर कर लें, ताकि हम आइंदा लोगों को जो है ना वो श्योर सैम्पल सर। पे भी दे सकेंगे जी, दिस शुड बी द वे टू प्रिपेयर योर वर्क। सर श्योर सर। ठीक है फ़हीम। श्योर सर। सो गुड वर्क, आपका पेपर सर भी सर अच्छा ही। मुझे बताएं, पेपर आपने इधर दिया था कैंपस पे या कहीं और दिया था? नहीं नहीं सर, मैं कराची में कर रहा हूँ सर। मैं आर्मी में हूँ, तो सर उधर ही पोस्टेड था, तो डीएल स्टूडेंट हूँ सर, उधर ही अपीयर अच्छा होता अच्छा, कराची क्योंकि सेंटर में सर। आपने जो ना वो यू आर द ओनली स्टूडेंट जिन्होंने कॉपी पे काम किया हुआ है, और बड़ा डिटेल्ड काम किया हुआ है। मुझे कोई चीज़ में मिली नहीं कि मैं उसमें से निकाल सर सकूं। आई होप कि वहाँ जो डिस्टेंस लर्नर सर सुपर हैं, उन्होंने कहीं आपको नोट्स तो नहीं खुलवा दिए थे? नहीं नहीं सर, मैं अकेला ही था सर। अकेले थे, वही नजर आ रहा है ना, अकेले थे तो लगता है उसने आपको खुली छुट्टी दी हुई थी। नहीं नहीं सर। देख सर लो, नहीं सच सर, बताओ अगर मुझे, होता तो अगर इधर दी थी पकड़ा भी जाता सर। सच बता दो मुझे, ताकि दी नहीं थी नहीं सर। तो वो भी पता हो, नहीं दी थी तब भी। नहीं नहीं सर। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। होगा तभी बताऊंगा, नहीं हुआ सर तभी बता दूंगा सर, अच्छा ऐसी कोई अच्छा, बात ठीक नहीं। है। क्योंकि इसका आपने सर मैंने जो क्वेश्चन पेपर दिया था उसी के ऊपर आपसे सोल्यूशन की रिक्वेस्ट की थी। आपने अलग से कॉपी फिल की हुई है, और आपका क्वेश्चन पेपर इसमें अटैच नहीं है। सर सर वो आई डोंट नो उन्होंने भेजा है कि नहीं भेजा सर। सबमिट करा दिया था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक हो गया फिर, कहीं वो मेरे ख्याल में मिक्स मिस हो गया होगा, तो सर आज टेक केयर ऑफ जी इट। सर। ठीक है जी, आपका अच्छा सर काम है। आपका मिड टर्म में एग्जाम, मिड टर्म में मार्क्स 23 है, और अच्छा पेपर सर हुआ, सर बहुत डिटेल्ड हुआ है। वो डिटेल ही मुझे कह रही है कि शायद ये टोटल कहीं से नोट डाउन हुआ हुआ है, लेकिन चले, आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात नहीं नहीं मानता सर। हूँ। लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी सर बात, यू हैव प्रेजेंटेड वेल, इट मींस जी यू सर। हैव सीन दी लेक्चर्स और आप इन टच भी रहे हैं। सर दैट इज गुड। सर इंशाल्लाह फाइनल कीप में इट भी अप, अच्छा करूंगा सर। कीप इट अप। और बाकी है कि अपना बाकी काम जो है ना वो अच्छे तरीके से करें। श्योर। थैंक यू वेरी मच श्योर जी, सर। शुक्रिया। श्योर सर। सलाम। ओके जी, सिद्दीक साहब, या ये जो ओप्पो पे कौन है आप भाई, अगर सेलेक्ट शेयर कर सकें अपना काम, अगर करना चाहते हैं तो। जी सिद्दीक, आवाज आ रही है आपको? जी सर, मुझे आ रही है सर, मुझे थोड़ी आप, सी प्रॉब्लम आ रही है शेयरिंग में। अच्छा, तो आई होप जी हो जाएगी शेयर। क्या कोई इशू ज्यादा है तो बताइए। जी सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलें, देख लें, हम ब्रेक कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू है इसमें, चेक चेक करना चाह रहे हैं। जी सर, मैं जैसे ही इसका कनेक्ट होता है ना, तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। कनेक्टिविटी में कोई इशू आ रहा है सर। अच्छा चलें, ठीक है, नो इशूज, आई कैन वेट फॉर दैट। ओप्पो पे कौन है जी? ओप्पो CPH 2219, कौन साहब है? जी सर, मैं मोहम्मद शफीक वकास हूँ सर। जी जी शफीक, आप शेयर करना चाहेंगे प्रेजेंटेशन या नहीं? जी सर, मैं शेयर करता हूँ। काइंडली आप शेयर करिए।
चलिए टाइम इसका खत्म होने वाला है। लेट्स लिंक अगेन, और आप 10 मिनट का ले लीजिए गैप, ब्रेक लीजिए, और वी मीट अगेन एट, मेरे पास इस वक्त 11:30 हो रहे हैं, हम 11:45 पे जो है ना दोबारा कनेक्ट होते हैं, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच यू सर। वेलकम, अपनी इश्यूज को रिजॉल्व कर लीजिए। ओके ठीक सर, है ओके। सर। थैंक यू।